Good morning, class. Jai Mata Di. How are you all? I hope you all are doing good at your home. As you all know that exams are coming. So, in our today's video, we are going to do the revision of all the grammar chapters. But before starting the revision portion, let us recite the shloka of the month. Okay, now let us start. The first chapter that we have already studied in grammar was the sentences and its kind. This chapter is from Learn Well English grammar portion. In this chapter we had studied there are 4 types of sentences. First one is assertive, which is also known as declarative sentence. Second one was imperative sentence. Third one is interrogative, and fourth one is exclamatory sentence. Now let us take a quick look of all these types of sentences. First one is assertive, the sentence which declares or asserts a statement, feeling, opinion, incident, event, history is called an assertive sentence. For example, she was upset because she lost the match. वो अपसेट थी क्यों? क्योंकि मैच हार चुकी थी. तो इस सेंटेंस में हमें एक फीलिंग आ रही है अपसेट की, उदास की. सो इट्स एन असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन, लास्ट नाइट अ टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस इन अवर सिटी. पिछली रात को हमारी सिटी में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था. तो ये एक इंसिडेंट है. सो इट्स एन असर्टिव सेंटेंस. थर्ड वन, रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली. नाउ रानी लक्ष्मीबाई जिसने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की थी, तो ये पास्ट में हो चुका है और ये हिस्ट्री है. सो इट्स एन असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड वन वॉज imperative. An imperative sentence is a type of sentence that gives instructions, command, advice, order or a request. Example, please bring the pizza on the table. अब इस सेंटेंस में आपने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज पिज्जा लेके आओ. सो इट्स एन imperative sentence. Go and bring the books from the bookshelf. इसमें आप ऑर्डर कर रहे हो कि जाओ किसी भी हालत में बुक्स लेके आओ बुक शेल्फ में से. सो इट्स एन imperative sentence. I want pin drop silence in the class. जैसे कि मैम बोलती है क्लास में दैट आई वॉन्ट अ पिन ड्रॉप साइलेंस. सो इट्स एन कमांड कि ये आपको फॉलो करना ही है. सो इट्स एन imperative sentence. Third one was an interrogative sentence, which is also known as question sentence. An interrogative sentence is a sentence that asks a question. जब भी किसी भी सेंटेंस में सवाल पूछा जाता है तो उसे हम इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, डिड यू फिनिश योर लंच, वेयर डू यू लिव. अब इन तीनों सेंटेंस में मैंने आपसे सवाल पूछा, राइट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईच एंड एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में क्वेश्चन मार्क होता ही है. That you have to remember. Next one, an exclamatory sentence expresses strong feeling. जब भी किसी सेंटेंस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती हो तो उसे हम exclamatory sentence कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज. इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई ताज जो है, ताजमहल, वो कितना ब्यूटीफुल है. सेकेंड वन, व्हाट अ लवली फ्लावर. ये फ्लावर कितना लवली है. An exclamatory sentence always ends with an exclamation mark. Okay? So this was our first chapter.
The next chapter was from English Grammar and Composition book, that is vowels and consonants. In this chapter we have studied that there are 26 letters in an English alphabet. From that 26 letters, 5 are vowels. Which are they? A, E, I, O and U. These 5 are vowels. Rest of the remaining 21 letters are known as consonants. Okay. Next thing was the use of A and N. When a word begins with a consonant sound, we use A before it. And when a word begins with a vowel sound, we use N before it. Right? For example, an apple. N in consonant a book. Okay. Our second chapter from the same book was naming words, that is noun. Now, what is a noun? Noun is a name of a person, place, animal or a thing that we all know. In this chapter we also studied that there are 4 types of nouns. Which are they? First one was singular and plural noun. Second one was masculine and feminine. Third one was countable and uncountable. And the fourth one that we studied from the Learn Well was common noun and proper noun. Now let us revise all the 4 types of nouns. First one is singular and plural. Singular means only one thing. कोई भी एक चीज होती है उसे हम singular कहते हैं. And plural means more than one, एक से ज़्यादा. जैसे कि book, अगर मैं बोलूँ book तो book is just a single book, एक ही चीज़ है वो. पर अगर मैं बोलूँ books यानी कि एक से ज़्यादा books. सिंगुलर एंड प्लूरल के कुछ रूल्स मैंने आपको सिखाए थे. द फर्स्ट वन इज किसी भी वर्ड के आखिरी में जब हम एस लगाते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल टेबल तो टेबल्स, चेयर तो चेयर्स. उसके बाद जिस भी वर्ड के आखिरी में एस, डबल एस, ई एस, सी एच, एस एच एंड एक्स होता है, उस वर्ड के आखिरी में ई एस लगाया जाता है उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. ओके. जैसे कि बी ओ एक्स बॉक्स, तो बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? बॉक्सेस. क्यों? क्योंकि आखिरी में एक्स है. फिर है बुश, तो आखिरी में एस एच है तो क्या होगा? बुशेस, ई एस लगेगा. उसके बाद नेक्स्ट रूल वॉज किसी भी वर्ड के आखिरी में जब वाई आता हो तो हमें वाई को हटा के आई ई एस लगाना है. जैसे कि बी ए बी वाई बेबी, तो वाई हटा दिया और क्या लगाएंगे? बी ए बी आई ई एस, बेबीज, यानी कि वाई हटा के आई ई एस लगाना है. उसके बाद एक रूल था किसी भी वर्ड के आखिरी में एफ या फिर एफ ई हो तो हमें उसे हटा के वी ई एस लगाना है. लाइक लीफ तो लीव्स, शेल्फ तो शेल्व्स. ओके. उसके बाद आता है इर्रेगुलर प्लूरल्स. इर्रेगुलर यानी कि इन सब वर्ड्स में कोई भी रूल नहीं लागू होता है. ये अपने आप में ही आपको याद रखने हैं. जैसे कि चाइल्ड, तो चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन. ऑक्स तो ऑक्सन. इन सब को हम इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं. ओके. तो ये थे सिंगुलर एंड प्लूरल के रूल्स जो आपको याद रखने हैं. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. मैस्कुलाइन यानी कि मेल यानी कि बॉय, लड़का, एंड फेमिनाइन यानी कि फीमेल यानी कि लड़की.
अभी इसमें आपको ये टेबल दिया हुआ है बुक में, वो आपको याद रखना होगा। सर, मैडम, फॉक्स, विक्सन, सन, डॉटर, ये पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद है काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन। जिस चीज को या जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल्स, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे कहते हैं अनकाउंटेबल्स। देखिए, पेंसिल्स, तो हम पेंसिल्स को काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है टेबल्स, टेबल्स को भी काउंट किया जा सकता है। और एक रूल मैंने आपको बोला था कि जिस भी वर्ड का हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे पेंसिल है, तो पेंसिल के पीछे एस लगा दूं मैं तो क्या होगा, पेंसिल्स। तो पेंसिल का प्लूरल फॉर्म बन गया पेंसिल्स, मतलब पेंसिल इज एन काउंटेबल नाउन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑयल, ऑयल यानी कि तेल, तो तेल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शुगर, शुगर को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जिन भी नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता। अभी ऑयल है तो मैं ऐसा बोलूँगी ऑयल्स। अगर ज़्यादा ऑयल हुआ, अगर एक ग्लास में या एक बॉटल में ज़्यादा ऑयल होगा तो मैं ऑयल्स थोड़ी बोलूँगी, मैं बोलूँगी 2 बॉटल ऑफ ऑयल्स या 2 कप ऑफ ऑयल, सॉरी 2 बॉटल ऑफ ऑयल या 2 कप्स ऑफ ऑयल, पर मैं ऑयल्स नहीं बोलूँगी। तो जब हम वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं तो उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। लाइक गोल्ड, तो अभी जो गोल्ड है उसका मैं गोल्ड्स करूँगी नहीं, सो गोल्ड इज एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज proper noun and common noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. जब भी हम किसी को particularly बुलाते हैं तो वो एक proper noun हुआ। And a common noun is a name that can be used for all the persons, place or things of that kind. देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ स्कूल, तो स्कूल इज़ अ कॉमन नाउन, क्योंकि वो कोई भी स्कूल हो सकती है। पर इफ़ आई से पर्टिकुलरली के विनय इंटरनेशनल स्कूल, तो विनय इंटरनेशनल स्कूल इज़ अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने नाम दिया है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर इज़ अ कॉमन नाउन, मैंने यहाँ पे किसी भी टीचर का नाम नहीं बोला है। पर अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि भाई रिंकू मैम या एकता मैम, तो वो पर्टिकुलर मैम का नाम बोल रही हूँ। सो रिंकू मैम एंड एकता मैम आर प्रॉपर नाउन। तो दिस वॉज अवर चैप्टर ऑफ नाउन्स दैट वी स्टडीड. Now coming towards our next chapter, which was pronouns. A pronoun is a word used in place of noun. Noun की जगह पे जिस word को हम use करते हैं उसे हम कहते हैं pronoun. In this chapter we studied 3 types of pronoun. First one was subject pronoun. Subject pronoun means the doer of the action in a particular sentence. Next one was object pronoun. Object pronoun means the receiver of the action. And third one was possessive pronoun. Who or what owns something. जैसे कि आपके पास अगर एक खिलौना है तो आप उसके ओनर हुए, क्योंकि वो खिलौना आपका है, तो वो एक पोजीशन दिखाता है. So it is known as possessive pronoun. Okay. Our next chapter was adjective. Adjective यानी कि describing words. Describing words are words that describe some quality of a person, place or thing. जैसे कि मैं ऐसा बोलूँ a beautiful girl, तो कैसी गर्ल? Beautiful. So beautiful is an adjective.
इस चैप्टर में हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखा था कि एडजेक्टिव हैव 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव. अभी जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें वर्ड के आखिरी में ER लगेगा और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें वर्ड के आखिरी में EST लगेगा. ठीक है. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज होता है आफ्टर इट और सुपरलेटिव में द का यूज होता है बिफोर इट. ओके. फॉर एग्जाम्पल, रीमा इज टॉलर देन मेघा. तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के बाद यानी टॉलर के बाद आया देन और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट से पहले आएगा द. रीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास. अभी टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री तो उससे पहले क्या लगाया, द लगाया. ठीक है. नेक्स्ट वन, जब भी वर्ड्स को हमें कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो उसके 2-3 रूल्स हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बिग, तो बिग का होगा बिगर एंड बिगेस्ट, पर बिग की जो स्पेलिंग है BIG बिग. तो जब भी लास्ट वर्ड जो है उससे पहले अगर वोवेल है तो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है. यहाँ पे देखिए BIG बिग है तो G से पहले क्या है, वोवेल, दैट इज I, तो क्या होगा बिगर. FAT फैट, तो इसमें लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो है T. सो T से पहले क्या होगा, अगर वोवेल है तो डबल T हो जाएगा, दैट इज फैट, फैटर एंड फैटेस्ट. ओके. उसके बाद नेक्स्ट वन इज ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट. अब इसमें क्या है, वर्ड के आखिरी में Y है, DRY, ड्राई. तो हमें Y को हटा के I लगा देना है सिर्फ D. ओके. नाउ सम एडजेक्टिव्स आर शॉर्ट एडजेक्टिव्स and some are long adjectives. Now see, beautiful, expensive. So to convert these long adjectives into comparative and superlative form, we will not put ER or EST at their end. We will put more in comparative form and most in superlative form. For example, see, honest, so more honest and most honest. Beautiful, more beautiful and most beautiful. So remember these things. Okay. Okay, now the next chapter was verb forms. A verb is an action word. It tells us about the action of a person or a thing. इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था, जंप. जंप इज अ वर्ब. अभी सपोज मुझे आपको ऐसा बताना हो कि राम ने कल ट्री पर से जंप किया, तो मैं क्या बोलूँगी, राम जंप फ्रॉम द ट्री यस्टरडे. नहीं, ये सेंटेंस गलत है. मैं बोलूँगी राम जंप्ड फ्रॉम द ट्री यस्टरडे. ये वाला सेंटेंस सही है. क्यों? क्योंकि मुझे आपको पास्ट वाली बात बतानी थी कि जो बीत चुकी है. तो जब भी हमें वर्ब का पास्ट फॉर्म बनाना हो तभी हमें वर्ब के पीछे ED लगाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, जंप, और जंप के पीछे ED लगाया तो जंप्ड. ओके. अभी सोचिए, अगर मुझे आपको ये बोलना हो कि राम ने कल नहीं आज जंप किया था ट्री से, ठीक है, तो मैं क्या सेंटेंस लिखूंगी, राम जंप फ्रॉम द ट्री यस्टरडे. तो आएगा नहीं क्योंकि आज जंप किया था इसलिए. तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है. राम जंप्स फ्रॉम द ट्री, क्योंकि राम ने अभी जंप किया है.
तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है, राम जम्प्स फ्रॉम द ट्री। जब भी हमें कोई भी चीज़ प्रेजेंट में बतानी हो, यानी कि अभी हो रहा है वो बताना हो, तो हमें वर्ब के पीछे एस लगाना है या ई एस लगाना है। जैसे कि जंप के पीछे हमने एस लगाया तो बन गया उसका प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा था कि पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें ईडी लगाना है और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें आईएनजी लगाना है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। किसी भी सेंटेंस में जब भी हम किसी के बारे में बोल रहे होते हैं तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि द बॉय इज़ प्लेइंग, अभी यहाँ पे मैंने किसके बारे में बोला, बॉय के बारे में, तो बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट। और द बॉय इज़ प्लेइंग, अभी बॉय कर क्या रहा है, वो खेल रहा है, तो इज़ प्लेइंग क्या हुआ, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहे होते हैं सेंटेंस में तो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, लुक एट द टू पार्ट्स ऑफ ईच सेंटेंस। अभी देखिए यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस में द सन इज द सब्जेक्ट एंड राइजेज इन द ईस्ट इज प्रेडिकेट। सेकेंड वन, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट। अब इस सेंटेंस में हम डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉग क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, एंड इज रनिंग आफ्टर द कैट क्या हुआ, प्रेडिकेट। द पीकॉक इज डांसिंग अंडर द ट्री। अब इस सेंटेंस में हम पीकॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पीकॉक क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, और इज डांसिंग अंडर द ट्री, पीकॉक क्या कर रहा है, ट्री के नीचे डांस कर रहा है, सो इज डांसिंग अंडर द ट्री इज प्रेडिकेट। राहुल सिस्टर वॉज प्लेइंग इन द पार्क। राहुल की जो सिस्टर है वो पार्क में खेल रही है, तो इसमें हमने राहुल की सिस्टर के बारे में बात किया है, सो राहुल सिस्टर इज सब्जेक्ट एंड वॉज प्लेइंग इन द पार्क इज प्रेडिकेट। Okay, now our next topic is essay writing. We have to understand how to write an essay, and our first topic is my school. We have to write an essay on my school. Okay, so let's get started. First of all, we will write the name of our school. I study in विनय इंटरनेशनल स्कूल। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, विनय में, सो वो फर्स्ट सेंटेंस विल बी आई स्टडी इन विनय इंटरनेशनल स्कूल। अभी स्कूल के बारे में हम आगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्कूल में एंटर होते ही आप क्या देखते हो, बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है हमारे स्कूल में। सो माई स्कूल हैज़ ब्यूटीफुल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। हमारी स्कूल में बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। अभी बिल्डिंग्स तो देख ली, स्कूल में जाने के बाद आप सबसे पहले कहाँ जाते हो, क्लासरूम में, अपना बैग रखने के लिए। सो द क्लासरूम ऑफ आवर स्कूल आर वेरी वाइड विथ बिग विंडोज फॉर एयर। हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ी क्लासरूम है और उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ाई करते हो स्कूल में, तो आपकी स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होगी जिसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई होंगी। So our next sentence will be, we can borrow and study books from the big library of our school. हमारे स्कूल में बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें से हम बुक्स बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई तो कर ली, तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। So now we will go to the playground area. The playground of our school are very large and beautiful. हमारे स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, राइट। अभी आपको प्लेग्राउंड में लेके कौन गया खेलने के लिए, और आपको पढ़ाई कौन करवाता है, टीचर्स, राइट। तो अभी हम टीचर्स के बारे में एक सेंटेंस लिखेंगे। ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और हमें बहुत ही हेल्प करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आपके स्कूल में वो हाउसेस हैं, सत्कार, समर्पण,
तो आप उस हाउसेज में पार्टिसिपेट भी करते हो, कंपटीशन भी होता है हाउस में, तो वो को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं। आवर स्कूल एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन को करिकुलम एक्टिविटीज़। आपकी स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपको टीचर्स गाइड करती हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करना है और सब, राइट। उसके बाद द लास्ट सेंटेंस विल बी आई लव माई स्कूल वेरी मच। तो ये ऐसे तो बहुत ही ईजी था, राइट। ये वाला ऐसे आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना रहेगा, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फन फेयर। फन फेयर यानी कि मेला। तो मेले में जाना तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग कभी अकेले गए हो क्या मेले में? अकेले थोड़ी जाते हैं, हमेशा फैमिली के साथ जाते हैं। और आपके पेरेंट्स यानी कि आपके मम्मी पापा संडे को फ्री होते हैं, तो वो आपको संडे को घुमाने लेके जाते हैं ना मेले में। तो हम सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखेंगे? लास्ट संडे आई विजिटेड फन फेयर विथ माई फैमिली मेम्बर्स। फैमिली के साथ पिछले संडे को हमने फन फेयर विजिट किया था, राइट। उसके बाद आप जब मेले में एंटर होते हो तो आप क्या देखते हो? वो ग्राउंड पूरा भरा हुआ होता है लोगों से, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे मेले में, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। तो अब नेक्स्ट सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारी दुकानें भी थी। स्टॉल्स यानी कि दुकानें, और वो दुकानें अलग अलग टाइप्स की चीज़ें बेचती थी। देयर वेर स्टॉल्स विथ मैनी काइंड ऑफ गुड्स, बहुत सारे टाइप के गुड्स थे वहाँ पे। उसके बाद वो तो आपने देख लिया कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, पर आपका ध्यान कहाँ पे होता है? राइड्स पे और शो पे, कि भाई कोई मैजिक शो है कि नहीं वहाँ पे। तो अभी हम नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे? कि देयर वॉज अ फिल्म शो, अ मैजिक शो एंड मैनी जॉय राइड्स, कि वहाँ पे बहुत सारी राइड्स थी, जैसे कि मैरी गो राउंड, मिनी रेलवे, रोप वे एक्सेट्रा। अभी वहाँ पे इतनी सारी राइड्स थी, पर राइड्स में जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? टिकट्स खरीदनी होती है। तो राइड्स में जाने के लिए हमने टिकट्स खरीदी। वी बॉट द टिकट्स एंड वेंट इन। उसके बाद हम लोग राइड्स में गए। इट वॉज अ ग्रेट फन राइडिंग ऑल द राइड्स। राइड्स में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग था, हमें बहुत मज़ा आया राइड्स में बैठ के, राइट। और राइड्स में बैठने के बाद आपने क्या किया होगा? उसके बाद आपको भूख लगी होगी, तो आप खाने पीने के स्टॉल पे गए होंगे। तो उसके बाद आपने कुछ रिफ्रेशमेंट्स ली, यानी कि कुछ स्टॉल्स पे गए खाने पीने की और कुछ खाया। एट लास्ट वी वेंट टू सम रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, वी रिटर्न होम लेट नाइट। आपने वहाँ पे रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स पे जाके कुछ खाया और उसके बाद आप वापस घर आ गए। तो ये वाला था हमारा फन फेयर वाला ऐसे, राइट। था ना बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे ऐसे का, वो है शॉपिंग मॉल। अभी शॉपिंग मॉल भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हो, और मोस्टली संडे को पापा फ्री होते हैं, तो वो हमें शॉपिंग मॉल में लेके जाते हैं। तो अभी सबसे पहला सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? लास्ट संडे माई फादर टुक अस टू द शॉपिंग मॉल। इट वॉज अ ह्यूज 5-storied बिल्डिंग। वो 5 स्टोर की बिल्डिंग थी, मतलब वो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें 5 फ्लोर्स थे, ठीक है। उसके बाद आप शॉपिंग मॉल गए तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा? कार को पार्क किया होगा पार्किंग में। इट वॉज अ फुल्ली एयर कंडीशन विद गुड सिक्योरिटी। वो जो शॉपिंग मॉल था वो फुल्ली एयर कंडीशन वाला था, ठीक है। आपने अपनी कार पार्क की और एलिवेटर से आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। We parked our car and reached the first floor by elevator. There were hundreds of shops of all kinds of goods. वहाँ पे बहुत सारी शॉप थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी मिल रही थी। वहाँ पे क्लॉथ्स की अलग शॉप थी, फिर फूड आइटम्स की अलग शॉप थी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग अलग शॉप थी, तो वो सब आपने देखी। There were separate sections for different kinds of products. We visited grocery, electricals and electronics section and purchased many items. उसके बाद आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में गए,
आपकी मम्मी को जो ख़रीदना था उस डिपार्टमेंट में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में गए और वहाँ से चीज़ें खरीदी, राइट। जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो तो मम्मा को पता होता है कि कहाँ पे मिल रही है और क्या चाहिए उनको। तो आपने अपनी मम्मा के साथ वो सारे डिपार्टमेंट विज़िट किए और जो चीज़ ज़रूरी थी वो मम्मा ने खरीदी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपने जो चीज़ चाहिए थी वो तो खरीद ली, पर बाकी के सब स्टोर्स भी मम्मा देखती है कि क्या नया आया है मार्केट में। सो वी विजिटेड द अदर फ्लोर्स वन बाय वन। आपने शॉपिंग मॉल में जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब विजिट किए वन बाय वन और देखा कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पर मुझे पता है कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट तो गेमिंग जोन में ही होता है। I especially loved the toys and video games section. We bought many toys and games. हम लोग बहुत सारे टॉयज़ और गेम्स लेके आए वहाँ से, ठीक है। एंड सब शॉपिंग करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, तो आप लोगों ने कुछ खाया, दैट इज़ फूड जोन। देन वी हैड सम पिज़्ज़ा एंड बर्गर एट द फूड जोन एंड केम बैक होम। उसके बाद आप लोगों ने फूड जोन में जाके पिज़्ज़ा और बर्गर खाया और वापस घर आ गए। तो ये था हमारा शॉपिंग मॉल वाला ऐसे। हमने 3 ऐसे किए, माई स्कूल, फन फेयर एंड शॉपिंग मॉल। अभी जो लास्ट वाला ऐसे है, 4th वन, दैट इज़ माई होम, वो वाला आप अपने आप लिखोगे। आपको आइडिया तो आ गया कि कैसे लिखना है, ठीक है। सो नाउ विश यू अ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स. Do well and don't stress. Okay, take care. Bye bye.